Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Yeah, so I think all of us are there. Let's start our class. Okay. So we are going to read about head injury today. Okay. So, injury to the head and to the brain is one of the most critical injuries to the human body, right? So now we should know why the injuries are so critical. Okay. So this is the miniature brain. Okay. So remember, the brain is a very soft structure. ठीक है, it's a very soft and a very sensitive structure. Okay, so any injury, even mild, can injure the brain, right? Number two is that why brain can be injured so easily, because the brain keeps moving. It can move a bit within the skull. So any impact from any side can lead to further movement of this brain, right? So that can injure the brain even more, right? So mobility points लिखते जाना. Number one, distortion of the brain because of its soft nature. Number two is mobility of the brain in relation to the skull. So it's some type of movement is possible of the brain within the skull, but when does this movement become very critical? This movement becomes very critical when द ब्रेन श्रिंक्स. तो ये ब्रेन किस में श्रिंक करती है? जेरियाट्रिक लोगों में, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी ब्रेन धीरे धीरे थोड़ी श्रिंक कर जाती है, एट्रोफिट हो जाती है. सो दिस ब्रेन विद इन द स्कल हैज मोर चांसेस ऑफ मूवमेंट. तो जब ब्रेन श्रिंक कर जाती है स्कल के अंदर, तो चांसेस ऑफ मूवमेंट बढ़ जाते हैं बुजुर्ग लोगों में. और जब उनको चोट लगती है, जिसे हम हेड इंजरी कहते हैं, तो खून इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज ब्रेन है छोटी, ब्रेन श्रिंक कर गई है, और स्कल और ब्रेन में थोड़ा सा गैप एक आम इंसान से बढ़ गया. ओके, सो मोर चांसेस ऑफ ब्लड अक्यूमुलेशन और क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा आर देयर. ओके, सो ऐसे बुजुर्गों में क्या होता है कि कई बार इमिजिएटली नहीं पता चलता. ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक देयर माइट बी प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन इन द मेंटल फैकल्टीज. जो उनका रिस्पॉन्स है, उनका बोलने की ताकत है, समझने की ताकत है, वो धीरे 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 डिटेरियोरेट करती है. सो इट इज़ अ वेरी साइलेंट टाइप ऑफ इंजरी एट टाइम्स एंड वेरी डेंजरस. क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा इन द एल्डरली. ये बात सभी को समझ आ गई है? ठीक है, समझ आ गई है आपको? ओके. देन नेक्स्ट important थिंग इन हेड इंजरी इज द configuration of the anterior of the skull. Configuration of the anterior of the skull. So dear students, this skull में ये दो parts होते हैं, claviria और vault. Claviria और vault, and if we remove this vault, we have the cranial base. Cranial base. तो दो पार्ट्स हो गए स्कल के. एक ऊपर जो कैप है, क्लेवेरिया और वॉल्ट, इसकी भी इंजरी हो सकती है, वो भी हेड इंजरी मानी जाती है. एंड नेक्स्ट इज द क्रेनियल बेस. नाउ क्रेनियल बेस में तीन तरह की कैटेगरीज हैं. आगे वाला जो एरिया है, इसे बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फॉसा. आगे वाले एरिया को क्या बोलते हैं? एंटीरियर क्रेनियल फॉसा. मिडल वाले एरिया को क्या बोलते हैं? मिडल क्रेनियल फॉसा. और पीछे वाले एरिया जहां आपको ये फॉर्मन मैग्नम दिख रही है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा. राइट? सो इफ यू जस्ट फील द स्कल, स्कल में भी there are elevations, depressions, some at some places it might be a little rough corrugated. Okay, so ये जो structure of skull है, this also contributes to the brain injury at times, because जब brain पे impact पड़ेगा, skull पे impact पड़ेगा, sometimes it would rub against the skull. Okay,
द हार्ड पोर्शन. सो अगर कोई ऐसे कोरुगेटेड रफ एरिया पे रब करता है पर चांस, सो देर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरी. So structure of skull is also very important. Okay. Brain has, cerebrum has series of depressions and elevations. आपने नाम सुना होगा gyri and sulci. ठीक है. So ये जो elevations होते हैं, ठीक है, elevations, यहाँ पर भी अगर पर चांस इम्पैक्ट पड़े तो इंजरी के ज़्यादा चांस है. एलिवेटेड है ना, प्रोट्रूडेड है थोड़ा सा ब्रेन का एरिया. सल्काई जो डिप्रेस्ड एरिया है वो थोड़ा पीछे की तरफ है. सो एनी इम्पैक्ट इन द रीजन ऑफ गायराई, सो anatomy and physiology of the brain is also very critical, right? Next is two types of injuries: acceleration and deceleration type of injuries. So these injuries are important: acceleration type of injury and deceleration type of injury. So you can see it on the zoom window as well: acceleration and deceleration type of injuries. Okay. एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरी क्या है कि जो विक्टिम है जिसे हेड इंजरी होनी है वो हाई स्पीड पे है और वो जाके किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जाके टकरा जाते हैं. राइट. सो ऐसा कब हो सकता है? सपोज somebody is driving a car, driving a motorcycle, and he bangs against a stationary tree. ठीक है. या एक पोल पे जाके गाड़ी आपकी आपकी मतलब विक्टिम की टकराती है. सो दोज आर द एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरीज. फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट बैंगिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. राइट. Second type of injuries are deceleration type of injuries. Deceleration, acceleration means speed. आपने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, +2 में +1 में एक्सेलरेशन पढ़ाते थे. सो एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड. डीएक्सेलरेशन मतलब स्पीड को घटाना. डीएक्सेलरेशन मतलब स्पीड को कम करना. सो इमेजिन a stick or a pole which is revolving at high speed hitting the skull of a person. एक डंडा उड़ता हुआ आया और जाके किसी के स्कल पे लगा. एक मोटा बोल्डर, एक पत्थर उड़ता हुआ आया और जाके किसी के स्कल पे लगा. सो नेचुरली जब वो टकराएगा तो स्कल उसकी वेलोसिटी अब्जॉर्ब करेगा और उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, उसकी स्पीड, पत्थर की स्पीड कम हो जाएगी. सो दोज टाइप ऑफ इंजरीज आर डी एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरीज. सो एक्सेलरेशन जब विक्टिम खुद हाई स्पीड पे है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराता है, जैसे किसी की कार, किसी का स्कूटर, किसी का मोटरसाइकिल, जाके किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे ट्री, पोल या किसी ऐसी चीज पे टकराता है. डी एक्सेलरेशन इंजरीज जब कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जाके टकराता है स्कल के ऊपर और उसकी स्पीड फिर रिड्यूस हो जाती है. सो दोज आर द deceleration टाइप ऑफ इंजरीज. उसके बाद हेड इंजरीज के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं. सेरेब्रल कंट्यूजन, कंकशन, contusion and cerebral laceration. So these are the few terms which are very important: cerebral concussion, cerebral contusion and cerebral laceration. So dear friends, cerebral concussion is a हल्की form of injury. It is a mild form of injury कि जिससे टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं
and the person usually recovers after some time. ठीक है, तो इमेजिन करिए कि किसी इंसान के आके एक पत्थर आके सिर पे लगा, ठीक है, उसको चक्कर आया, वो गिर गया, ठीक है, कुछ देर वो कंफ्यूज्ड रहा और फिर वो धीरे धीरे रिकवर कर गया. So a very mild type of injury of the brain is the concussion injury, which produces temporary physiological changes called causes mild distortion, and the patient usually recovers. Next type of injury which is dangerous is known as contusion. Contusion क्या होता है? एक ऐसी ब्रेन इंजरी जो severe form of injury है, which can lead to hemorrhage and edema in the brain. यानी कि ब्रेन पे चोट लगी, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई, सूजन हुई, सूजन की वजह से जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो अफेक्ट हुए. सो दैट इज कंट्यूजन इंजरी टू द ब्रेन. सो कंट्यूजन इंजरी एक सीरियस इंजरी टू द ब्रेन है जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन होगी. क्यों सूजन होगी? बिकॉज ऑफ द इंजरी. हेमरेज होगी, ब्लीडिंग होगी, एडिमा होगा. कंट्यूजन. एंड लास्ट टाइप ऑफ इंजरी टू द ब्रेन इज ब्रेन लैसरेशन. सो आप समझ सकते हैं लैसरेशन का मतलब है टीयरिंग ऑफ द ब्रेन. ठीक है, टेयरिंग ऑफ द ब्रेन. ठीक है, सो एनी टेयरिंग ऑफ द ब्रेन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर्स causing severe type of hemorrhage, causing severe type of edema in the brain is laceration. सो जल्दी से हम पॉइंट्स रिपीट कर देते हैं. वाई ब्रेन इंजरीज आर सो क्रिटिकल. सो नंबर 1 इज ब्रेन इज अ वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर. बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, सो इट इज लायबल टू इंजरी. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट ब्रेन has some micro movements within the skull. Okay, so in certain individuals like geriatric population, बुजुर्ग लोगों में ब्रेन जो होती है वो श्रिंक कर जाती है. तो जब ब्रेन श्रिंक कर जाती है सो उसका मूवमेंट का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. द चांसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ब्रेन विद इन द स्कल इंक्रीजेस. सो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज्ड मूवमेंट विद इन द स्कल, पर चांस अगर कभी भी किसी बुजुर्ग को ऐसी इंजरी होएगी, सो ब्रेन श्रिंक की हुई है, खून इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे वो खून इकट्ठा होता जाएगा ब्रेन में और कंप्रेस करता जाएगा. किसे करता जाएगा? वाइटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन, नर्व्स, टिश्यूज, वेसल्स. ठीक है, सो मोबिलिटी ऑफ द ब्रेन विद इन द स्कल. तीसरी चीज क्रिटिकल क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रेन. सो ये ब्रेन का याद रखना, दो तरह की इंजरीज हो सकती हैं. एक तो होती हैं इंजरीज ऑफ द कैलवेरिया. ओके, सो दिस इज द कवरिंग ऑफ द स्कल एंड द इंजरीज ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. बेस ऑफ द स्कल की इंजरीज तीन तरह की हो सकती हैं. सो इंजरीज ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इंजरीज ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा एंड इंजरीज ऑफ द posterior cranial fossa. Anterior cranial fossa, middle cranial fossa and posterior cranial fossa. उसके अलावा दो तरह की इंजरीज आपको बताई, एक्सेलरेशन इंजरी एंड डी एक्सेलरेशन इंजरी. ओके, एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरी एंड डी एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरी. सो एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरी है जब विक्टिम बहुत तेज स्पीड से है किसी भी व्हीकल में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, और वो जाके एक स्टेशनरी पोल से टकराता है. डी एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरीज जब कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पे है और वो आके विक्टिम की ब्रेन पे टकराता है और
फिर उस ऑब्जेक्ट की नेचुरली स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन ने, जो विक्टिम की ब्रेन है, उसने सारा इम्पैक्ट खुद पे एब्जॉर्ब कर लिया. सो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इंजरीज. फिर टर्मिनोलॉजी ऑफ इंजरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेरेब्रल कंकशन, cerebral contusion and cerebral laceration. सो कंकशन एक हल्की फुल्की इंजरी है, ठीक है. सो इट इज अ डिस्टॉर्शन, माइल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्रेन विच कॉजेज सम टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस. अनकॉन्शियसनेस कर सकती है, ठीक है. कुछ कंफ्यूजन कर सकती है, माइल्ड कंफ्यूजन, स्टूपर, है ना. सो टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और पेशेंट रिकवर कर जाएगा. उसकी मेंटल फैकल्टीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी विद इन 24 आवर्स. ओके. देन इज कॉन्ट्यूजन. कॉन्ट्यूजन किस तरह की इंजरी है? कॉन्ट्यूजन एक स्वीयर फॉर्म ऑफ इंजरी है, जहां पे डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्रेन होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंजरी विच लीड्स टू स्वीयर ब्लीडिंग एंड इडीमा. ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, ब्रेन में सूजन होती है, एंड इट इज अ स्वीयर फॉर्म ऑफ इंजरी, कॉन्ट्यूशन. तीसरा है टीयर. टीयर का मतलब है लैसरेशन. ब्रेन फट गई. कैसे फट गई? बिकॉज ऑफ द स्वीयर इम्पैक्ट. सो ये जब ब्रेन फटेगी, आप समझ सकते हो, बिकॉज ऑफ द स्वीयर हैमरेज एंड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट द ब्रेन कैन गेट डिस्प्लेस्ड अ बिट. डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. सो दैट इज seen in laceration type of injuries. ठीक है. So I hope the injuries are clear to you. So जब भी ऐसी ब्रेन इंजरीज होंगी, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. सो जो इंसान है वो सेमी कॉन्शियस हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक है. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोलॉजिकली वो कंप्लीटली फिट नहीं होगा, ठीक है. सो इसको असेस करने के लिए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द ब्रेन एक स्केल होता है. आपने नाम सुना होगा, ग्लासगो कॉमा स्केल. सुना है? GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल. सो ये भी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ग्लासगो कॉमा स्केल. सो दिस वाज गिवन इन 1974 बाय जेनेट एंड टीसडेल. As seen in the Zoom window, Glasgow Coma Scale was given in 1974 by Janet, ये दो साइंटिस्ट हैं, जेनेट एंड टीसडेल. ग्लासगो कोमा स्केल गिवन इन 1974 बाय जेनेट एंड टीसडेल. अब ये आपको बाय हार्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके ऊपर. सभी एग्जाम में, कोई सी मर्जी एग्जाम का, यू टेक एनी नेम एंड दैट दिस वुड बी देयर. तो ये ईवीएम याद रखना. ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है. ये ईवीएम है आई रिस्पॉन्स. आंखों का क्या रिस्पॉन्स है? वर्बल रिस्पॉन्स, बोलने का क्या रिस्पॉन्स है? और मोटर रिस्पॉन्स. मोटर समझते हो? हाथ ऊपर उठाया, पाँव उठा दिया, गर्दन घुमाई, दिस इज ऑल मोटर रिस्पॉन्स. ठीक है. तो हम जो भी विक्टिम है, सपोजिटली जिसको हम चेक कर रहे हैं, वेदर दैट पर्सन हैज हेड इंजरी और नॉट, उसकी ये तीन रिस्पॉन्स जरूर चेक करेंगे. उसकी आंखों को चेक करेंगे, उसकी बोलबानी को चेक करेंगे, सही तरीके से बोल सकता है कि नहीं, और उसका मोटर रिस्पॉन्स हम जरूर चेक करेंगे. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है. कई बार आप इंटर्नशिप में बैठे होते हो, कुछ अपनी धुन में होते हो, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है, कोई अपने ऐसे शॉपिंग कर रहा होता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, कई बार कोई ऐसे अपना पढ़ाई कर रहा होता है, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है. सडनली कॉलेज के प्रिंसिपल आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जस्ट ऑल ऑफ अ सडन. तो कोई बता सकता है अनम्यूट करके क्या रिस्पॉन्स होता है?
अच्छा, आप नहीं जवाब देना चाहते, मैं दे देता हूँ। हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे टाइम में हम उठ के खड़े हो जाते थे और विश करते थे सर या मैम को। ठीक है, वैसे आजकल के टाइम में ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसे देखने शुरू हो जाते हैं जैसे मतलब देखा ही नहीं कि आया भी है कि नहीं। ऐसा मेरे को लगता है, दिस हैपन्स वेरी कॉमनली। हमारे जैसे लोग, है ना, फिर हमारे जैसी फैकल्टी फिर आके ग्रीट करती है, विश करती है, बट बच्चे कई बार भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। आंखों से आंखें मिली और एकदम सिर झुका दिया या खड़े हो गए। सो आई रिस्पॉन्स में पहला जो चीज होती है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियसली। ओके, नेक्स्ट इज टू स्पीच, टू स्पीच। ओके, सो कई बार हम अपनी धुन में होते हैं एंड somebody कॉल्स आउट आवर नेम, वरुण बात सुनना, ऐसे एकदम आंखों की मूवमेंट होती है, सडनली झल्ला के यू जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू स्पीच। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू पेन, रिस्पॉन्स टू पेन, रिस्पॉन्स टू पेन। ओके, सो रिस्पॉन्स टू पेन का क्या होता है, कई बार कोई जो हेड इंजरी का विक्टिम होता है थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में होता है। सो एक वाइट एप्रन डाल के डॉक्टर साहब उसके सामने आके खड़े हो गए, उसने नमस्ते नहीं की, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर बेड साइड पे उसका नाम लिखा होता है चार्ट पे, कल्लू राम। तो उसने ऐसे चार्ट देखा, कल्लू राम जी ठीक हो आप? तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, आंखें उसकी नहीं मूव कर रही टू स्पीच। फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ईयर लॉब्यूल को ऐसे प्रिक करते हैं, चुंडी वढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर स्मॉलर फॉर्म ऑफ इंजरी है, मान लो कंकशन इंजरी है, so the patient might respond a bit by moving his or her eye. So that is response to pain, response to pain. Okay, एंड लास्ट इज कि किसी को बहुत ही सीवियर हेड इंजरी होगी, तो डॉक्टर साहब सामने आके खड़े होंगे, देयर वुड बी नो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। डॉक्टर साहब कल्लू राम बोलेंगे, देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स। डॉक्टर साहब उसको प्रिक करेंगे, चुंडी वडेंगे, देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स टू पेन। ठीक है, सो लास्ट इज द वर्स्ट फॉर्म which is no response. So we are talking about I response. So I response किस किस तरह का होता है, spontaneously, to speech, to pain, no response। दोस्तों हमने अपने विक्टिम को मार्क्स देने हैं, जैसे होता है ना वो ब्यूटी पेजेंट में जज करते हैं, एक वो पंजाबी गाना है, 2 नंबर में दवा तेरी ऊंची हील नू, 2 नंबर में दवा तेरे वट एवर, है ना। So this is like you have to assess your victim. You have to give marks or scoring to your victim, right? Next is the verbal response. Next is the verbal response of the victim. ठीक है? So first is oriented, second is confused, third is inappropriate words, next is incomprehensible sounds, and last is no response. Oriented, confused, inappropriate words, incomprehensible sounds, no response. ठीक है? So the doctor is calling out the victim's name. Kallu Ramji, the patient is orienting. Yes, sir. He's oriented. Okay. So we give the maximum score. Then is confused. ठीक है, डॉक्टर ने विक्टिम का नाम पुकारा, सो विक्टिम रिस्पॉन्ड कर रहा है बट द रिस्पॉन्स इज अ लिटिल स्लगिश, दैट इज अ लिटिल स्लो। सो नेक्स्ट इज कंफ्यूज्ड। ओके,
देन डॉक्टर ने विक्टिम का नाम पुकारा, ओके, सो ही इज ट्राइंग टू स्पीक but the speech, okay, is not very clear. It can be heard, okay, the doctor might be able to make out, okay, but it is not like that of a normal person. So inappropriate words. ठीक है. Next is doctor has called out the patient's name and the victim is trying to speak but he is just mumbling in his mouth. उसकी बातें कोहेरेंट नहीं लग रही, उसकी बातें समझ नहीं आ रही, कुछ कुछ मुंह में ही मम्बल कर रहा है. So those are incomprehensible sounds. Last is doctor has called out the victim. Victim is not responding at all. आई बात समझ में? Okay. So this is how we give the grading. Oriented, confused, 3 marks to inappropriate words, 2 marks to incomprehensible sounds, and last is no response, 1 mark. Okay. आपको याद है आए रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियसली उसको कितने नंबर देते हैं? 4. टू स्पीच को कितने नंबर देते हैं? 3. ठीक है. टू पेन को कितने नंबर देते हैं? 2. नो रिस्पॉन्स को कितने नंबर देते हैं? 1. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लासगो कॉमा स्केल में 0 नंबर नहीं देना कभी भी. ठीक है. जीसीएस में हमने कभी भी देर इज नो 0 मार्क्स और 0 स्कोर इन अ ग्लासगो कॉमा स्केल. याद रखोगे इस बात को? नो 0 मार्क्स और नो 0 स्कोर इन अ ग्लासगो कॉमा स्केल. नेक्स्ट इज मोटर रिस्पॉन्स. सो मोटर रिस्पॉन्स में क्या क्या है? ओबेस, लोकलाइजेस, विड्रॉज टू पेन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, नो रिस्पॉन्स. So this is how we grade the motor response. Obeys, टांग उठाने को बोला, टांग उठाई. Localizes, कहाँ पे आपको दर्द हो रहा है? मान लो किसी की टांग में फ्रैक्चर है ना, तो वो पर्टिकुलर टांग की तरफ पॉइंट आउट कर सकता है या थोड़ा सा उसको मूव करने की कोशिश करेगा. Localizes पेन. Withdraws to पेन. Flexion, ठीक है. Abnormal extension, ठीक है. एंड द वर्स्ट इज कि कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, स्वीयर हेड इंजरी है और वो अपने लिम्स को मूव ही नहीं कर पा रहा. दैट इज द वर्स्ट. सो ओबेज टू पेन, लोकलाइज टू पेन, विड्रॉज, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड नो रिस्पॉन्स. हाईएस्ट स्कोर आप देख रहे हो इसमें होता है मोटर रिस्पॉन्स में. ठीक है. सो विच कॉम्पोनेंट ऑफ अ ग्लासगो कॉमा स्केल आउट ऑफ आई, वर्बल एंड मोटर हैज बीन गिवन मैक्सिमम इंपॉर्टेंस? रिमेंबर मोटर, बिकॉज मोटर में सबसे ज्यादा स्कोर है. बाकी स्केल की तरह जो वर्स्ट रिस्पॉन्स है उसको 0 नहीं देंगे. ठीक है. आए और वर्बल में हमने सबसे कम नो रिस्पॉन्स को 1 दिया था, तो इसमें भी 1 देंगे. राइट. सो बच्चों, ये आपको ना प्लीज अनम्यूट करके मेरे साथ बोलना पड़ेगा और ये लिख लिख के याद करना पड़ेगा. आई रिस्पॉन्स अभी बोलेंगे. स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, टू स्पीच, टू स्पीच, टू पेन, नो No रिस्पॉन्स. वर्बल में बोल के, ओरिएंटेड, कंफ्यूज्ड, वेरी गुड, inappropriate words, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, incomprehensible, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, no response. वर्स्ट बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं, नो रिस्पॉन्स. मोटर जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओबेज टू पेन, लोकलाइजेस द पेन, विड्रॉज, फ्लेक्शन, abnormal extension, no response. and Okay. response. अब थैंक यू सो मच, म्यूट कर लीजिए. ओके. अब हम टोटल स्कोर कैलकुलेट करते हैं. मान लो आप मेरा स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो. मेरा स्कोर मैं तो नॉर्मली लग रहा हूँ वैसे, है ना, बाकी पता नहीं. तो आई रिस्पॉन्स
में कितना मेरे को स्कोर दोगे आप लोग? मैक्सिमम स्कोर दोगे? 4। 4. ठीक है, देख रहे हो, स्पॉन्टेनियसली 4 है। वर्बल में शायद ओरिएंटेड होता है 5. 5। मोटर में होता है ओबेज। 6. तो मैथमेटिक्स पुअर है, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। 6 और 4 10, 15. तो मेरा टोटल स्कोर बनेगा 15। सो हाईएस्ट स्कोर इन अ ग्लासगो कॉमा स्केल इज 15। हाईएस्ट स्कोर इन अ ग्लासगो कॉमा स्केल इज 15। ठीक है, आराम से क्लास अटेंड करो, ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग फ़ोन से एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए होगी रिकॉर्डिंग, टेंशन मत लो। ठीक, उसके बाद लोएस्ट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। सो नो रिस्पॉन्स आई का 1 है, किसी को स्फीयर हेड इंजरी है। वर्बल रिस्पॉन्स जो है 1 है, स्फीयर हेड इंजरी है। मोटर रिस्पॉन्स 1 है, स्फीयर हेड इंजरी है। तो उसका स्कोर कितना बनेगा? मिनिमम स्कोर 3। 3. सो इससे हमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात पता चल गई जो वैल्यू पैड में लिखने वाली बात है। मैक्सिमम स्कोर इन अ ग्लासगो कॉमा स्केल इज 15 एंड मिनिमम स्कोर इन अ ग्लासगो कॉमा स्केल इज 3। मैक्सिमम स्कोर इन अ ग्लासगो कॉमा स्केल इज 15, minimum score in Glasgow comma scale is 3, right? Patient goes into coma when the Glasgow comma scale slips below 7. 7 से नीचे चला गया तो पेशेंट गोज इनटू कोमा। अगर मैं आपकी जगह होता तो एक स्पाइरल पैड सारे स्टूडेंट्स के पास होता है जिसे हम वैल्यू पैड कहते हैं, तो ये बातें वैल्यू पैड में लिखता। So person goes into coma when the GCS falls below 7. Patient should be admitted to a trauma center. बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ना, अगर आप पीजीआई जाओगे या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे, वहाँ पे एक अलग से यूनिट होता है जो ट्रॉमा विक्टिम से डील करता है। सो पेशेंट शुड बी एडमिटेड टू अ ट्रॉमा सेंटर व्हेन द जीसीएस फॉल्स बिलो 12। सो दिस वाज अबाउट ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं ग्लासगो कॉमा स्केल से। उसके बाद हम बात करेंगे स्कल फ्रैक्चर्स की। स्कल फ्रैक्चर्स कैन बी ओपन वैरायटी और कैन बी क्लोज्ड वैरायटी। ठीक है, ओपन वैरायटी और क्लोज्ड वैरायटी। सो ओपन वैरायटी हम उस तरह के फ्रैक्चर को कहते हैं व्हेन देयर इज डिसरप्शन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन, ओपन वैरायटी। एंड क्लोज्ड वैरायटी होता है जो दिखता नहीं है, टूट गया, कोई चोट लगी पर दिख नहीं रहा, व्हेन देयर इज नो डिसरप्शन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। Many of the times these open fractures, because there is disruption of the overlying skin, so it must be a severe injury, they are associated with leakage of cerebrospinal fluid. They are associated with cerebrospinal fluid leakage. Cerebrospinal, and obviously the closed fractures would not have CSF leakage. So open fractures have great likelihood of CSF leakage, whereas closed fractures of the skull or the brain, they do not have a likelihood of CSF leakage. So दोस्तों CSF क्या होता है? CSF होता है passage of cerebrospinal fluid from the brain outside. Expose हो गया, अभी आपका और मेरा cerebrospinal fluid पड़ा हुआ है ब्रेन में, ठीक है, बट किसी कारणवश अगर वो एक्सपोज हो जाए, वो गिरना शुरू हो जाए, so that would lead to the
severe form of injury. ठीक है. So why this exposure is so critical? मान लो किसी का CSF बहना शुरू हो जाता है. ठीक है. So हमारी जो हेड एंड नेक, जो हेड रीजन की जो वेन्स हैं वो वाल्वलेस हैं. वाल्वलेस समझते हो? ऊपर से नीचे की तरफ भी जा सकता है कुछ, और नीचे से ऊपर की तरफ भी जाना चाहे तो जा सकता है. ठीक है. यूजुअली ऊपर के नीचे तरफ से ही जाती हैं. ठीक है. बट रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन भी जा सकता है. सो जब CSF लीकेज हो जाती है, कई बार इन्फेक्शन जो है ब्रेन की तरफ जा सकता है. देर आर मोर लाइकलीहुड दैट इन्फेक्शन माइट रीच द ब्रेन एंड दैट कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस ऑफ द कवर्नस साइनस, एंड जो और ज़्यादा सीवियर चीज़ हो सकती है, दैट कैन लीड टू मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन, सूजन ऑफ द ब्रेन. ठीक है. So this cerebrospinal fluid leakage predisposes a person to meningitis. Is that clear? बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है. So such open injuries can lead to the सूजन, inflammation of the brain which can be life threatening. तो neck rigidity हो जाएगी, vomiting आएगी, confusion हो जाएगा. These are all signs of meningitis, and if untreated for 24 to 48 hours that will lead to death. अब ध्यान से सुनना कि ये CSF लीकेज कैसे हो सकती है. CSF लीकेज कैन अकर थ्रू द नोज, और CSF लीकेज माइट अकर थ्रू द ईयर. नाक से भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ सकता है इंजरी में, और कान से भी आ सकता है. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, ये आपको एक दिख रही होगी पेपर थिन बोन, छेद छेद से मुंह में, स्मॉल होल्स. कैन यू सी? ये ऑर्बिट है. ऑर्बिट इज अ बोनी कैविटी विच लॉजेस द आई बॉल. तो ये इसकी मीडियल वॉल है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेपर थिन बोन है, इसको बोलते हैं एथमॉइड बोन. मोर स्पेसिफिकली दिस इज नोन एज द क्रिबिफॉर्म प्लेट. ये क्रिस्टा गल्ला ये भी दिख रहा है आपको. ठीक है. क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड. सो एक इंजरीज आपने सुनी होगी, लीफोर्ट फ्रैक्चर्स. लीफोर्ट और मिडल फेस फ्रैक्चर्स, मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स. सो लीफोर्ट 2 और लीफोर्ट 3 में बहुत कॉमन बात है, लीफोर्ट 2, लीफोर्ट 3, बहुत कॉमन बात है कि ये क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड टूट जाए. सो क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड इज लाइक द फ्लड गेट. दोस्तों, आपने फ्लड गेट्स का नाम सुना है कभी? नहीं सुना. आपको मेरी गुजारिश है, कभी फ्री टाइम में आप लोग जाना सुखना लेक. तो सुखना लेक में फ्लड गेट्स लगे हुए हैं. जब पानी बहुत ज़्यादा, बारिशें हो रही होती हैं और पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो फ्लड गेट्स को ऐसे नीचे कर दिया जाता है. सो वो जो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो आगे जो रिवर्स वगैरह के साथ कनेक्शन है, घग्गर वगैरह वटेवर, जहाँ पर भी उसका कनेक्शन है, उसके साथ उसको खोल दिया जाता है. क्योंकि अगर सुखना लेक में वाटर डेंजर मार्क से ऊपर चला जाए तो वो पानी बाहर की तरफ भी आ सकता है. मान लो आप पॉपकॉर्न खा रहे हो सुखना लेक में, है ना, और पता चले एक ऐसे पानी आए और उड़ा था ना, फिर एंट्रेंस एग्जाम कौन देगा? या आपका मेंटोर पढ़ाएगा कैसे अगर वो पानी में ही बह जाएगा बेचारा? समझ आ रही है कहानी आपको? ठीक है. सो फ्लड गेट इज लाइक अ कंट्रोल. एक एक चीज है जो कंट्रोल कर रही है. तो यहाँ पे ये क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड है जिसने ढक के रखा हुआ है किसको? CSF को, ब्रेन के. जैसे ही ये खुल जाएगा फ्लड गेट, ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, तो नाक के थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सो रिमेंबर, नाक का कुछ को भी ना राइनो वर्ड यूज करते हैं. सो कैन यू, एनीबडी ऑफ यू टेल मी व्हाट इज राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी. Of nose. यस. कई बार आपने सुना होगा नोज जॉब करवाया. नोज जॉब होता है, रिब एक्ट्रेस, हार्वेस्ट. एक्टर, आजकल तो बच्चे भी कराने लग गए हैं, स्टूडेंट्स. तो ये नाक को एक्वलीन नोज कहते हैं ना, ग्रीक गॉड जैसा, ऋतिक रोशन का ग्रीक गॉड जैसा नाक है ना. सो ये नोज को स्कल्प्ट करना प्लास्टिक सर्जन करते हैं, राइनोप्लास्टी, या ENT सर्जन करते हैं. सो ये जहां पर भी वर्ड राइनो आए, लिख लो, शर्माओ मत. जहां पर भी ये वर्ड राइनो आए, इसका मतलब है नोज. इसको अपने लिए लिख लो. wherever this word rhino comes,
जैसे एक ये दवाई आती है जिन लोगों को स्वीयर कोल्ड हो गया होता है, राइनोस्टैट प्लस, है ना। तो कोल्ड जुकाम कहाँ से बहता है? नाक से ही बहता है। सो आप समझ सकते हो जहाँ ये वर्ड राइनो आ जाए, या आपने सुना होगा एक वर्ड राइनाइटस, शायद राइनाइटस, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द नोज। सो जहां पर भी ये वर्ड राइनो आ गया, दैट मीन्स अ नोज। सो दोस्तों, CSF राइनोरिया का क्या मतलब है? CSF राइनोरिया का मतलब है पैसेज ऑफ CSF थ्रू द नोज। CSF राइनोरिया एज सीन ऑन द जूम विंडो, इसका क्या मतलब है? पैसेज ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थ्रू द नोज। पढ़ा जा रहा है राइनोरिया सभी से? ओके, सो CSF राइनोरिया इज द पैसेज ऑफ CSF, दोबारा लिख दिया, पैसेज ऑफ CSF थ्रू द नोज। CSF rhinorrhea is passage of CSF through the nose. Now dear students, what happens is, जब नाक से cerebrospinal fluid बह रहा है, क्यों बह रहा है? बिकॉज, सभी लोग अनम्यूट करके बता दो क्या चीज टूट गई है? क्रिबी फ्रॉम प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। सो ये जो cerebrospinal fluid है, दिस इज अ क्लियर फ्लूइड. Sometimes we are unable to differentiate it from the nasal secretion. नाक से भी तो नोजी बह सकता है, कोल्ड होती है जब, है ना. So this is very important question, that how do you differentiate CSF rhinorrhea from a nasal secretion? कोई बता सकता है कैसे differentiate करेंगे? So when we take the secretion, ऊंची आवाज, थोड़ी ऊंची आवाज में डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? so Yes. when we take the secretion on a paper or a tissue paper, there's a halo which is seen. Okay. What else? Content, sir. Sorry. Content, sir. Content. Yes, sir. Content of. Like ओके, राइट. सो आपको कुछ कुछ आइडिया मैं बता देता हूँ, ठीक है. पहली बात तो याद रखना कि जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाक से बह रहा होता है, इट कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक, ठीक है, स्निफ्ड बैक. सो कई बार आपने देखा होगा, आपको आपको सर्दी लगी होती है और आपका नोजी बह रहा होता है, ठीक है. तो आप सामने आपके कोई टीचर खड़ा है ना, तो आप नहीं चाहते कि एम्बैरेसमेंट हो, तो आप ऐसे 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 कुछ कुछ करते रहते हो, है ना, सो दैट ही और शी, है ना, यू डोंट वांट टू फील एम्बैरेस्ड. सो आप समझ सकते हो ना, नेजल सिक्रीशन थोड़ा सा आप अंदर खींच सकते हो, यू कैन स्निफ बैक. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कभी भी स्निफ बैक नहीं हो सकता, कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक. यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बाहर आएगा ही आएगा, राइट. सो CSF कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक, whereas nasal secretion, as you all know, can be sniffed back. इसने बाहर आना ही आना है, ठीक है. सो CSF cannot be sniffed back, uncontrollably बाहर आएगा. nasal secretion can be sniffed back. एक इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए. इसको हम बोलते हैं CSF राइनोरिया के लिए रेजर्वॉयर साइन. रेजर्वॉयर साइन. कोई बता सकता है ये इंग्लिश वर्ड रेजर्वॉयर का क्या मीनिंग है? जैसे मैं बोलूं, एक फ्रेज यूज करूंगा, डेंटोरिशियंस आर रेजर्वॉयर्स ऑफ नॉलेज. ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला जो आपने मॉक टेस्ट दिया है. तो बड़ी खुशी से आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अपीयर हुए थे, ग्रेजुएट्स भी अपीयर हुए थे, और डेंटोरिशियंस ने जो बाकी इंस्टीट्यूट, जितनी भी मैं नाम नहीं लूंगा, सभी इंस्टीट्यूट के बच्चों को सरपास किया, ठीक है. सो मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपका जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. सो वी आर होपफुली ऑन द राइट ट्रैक. सो रेजर्वॉयर होता है कलेक्शन, कोई चीज इकट्ठी होती जा रही है, ठीक है. सो हम क्या करते हैं, सपोज यू सस्पेक्ट मी दैट आई एम हैविंग CSF राइनोरिया, मेरी क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड टूटी हुई है. सो यू आस्क मी टू लाई इन ए
सुपाइन पोजीशन, सुपाइन समझते हो, लिटा दिया मुझे, ठीक है। अब क्या होएगा, जब आप लिटाओगे, ऐसे था मैं, अब मैं ऐसे हो गया, तो ये CSF ग्रेविटी के थ्रू नीचे नहीं बह सकता। कोई चीज तभी बहती है ना, ग्रेविटी से नीचे की तरफ बहती है जब ऐसी हो जाए। अब ये ऐसे लेट गया तो ये CSF इकट्ठा होता जा रहा है, टूट तो गई है हड्डी, वो बाहर निकलना चाहता है, बट अभी इकट्ठा होता जा रहा है। सो 5-10 मिनट उसको सुपाइन पोजीशन में लिटा के रखोगे, लिटा के रखा हुआ है, CSF इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही खड़ा करोगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अब आपको पता है CSF तो रुकने नहीं वाला, इट इज गोइंग टू कम आउटसाइड, तो बहुत सारा CSF is going to gush out from the nose. That gushing out of the CSF after placing the patient in a supine position for some time is known as the reservoir sign. समझ आई बात कुछ कुछ? ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड टूटी हुई है, CSF लीकेज शुरू हो गई है, तो ग्रेविटी से हर चीज़ बहती है नीचे की तरफ। हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। अब जब लिटा देंगे तो नाक से बहेगा नहीं, वो CSF कम बहेगा, ठीक है। 5-10 मिनट लिटा के रखेंगे तो बड़ा सारा CSF ब्रेन में इकट्ठा हो गया, ठीक है। जैसे उसको आप प्रोन पोजीशन में सीधा खड़ा करोगे, सो एकदम CSF गश आउट करेगा फ्रॉम द नोज, सो दैट इज रेजर्वॉयर साइन। सो ये रेजर्वॉयर साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट देयर इज CSF ब्रीच और CSF लीकेज, और देयर इज फ्रैक्चर ऑफ सम बोन और some leak is there somewhere, right? फिर जो पेशेंट का पिल्लो है, जब रात को मरीज सोएगा तो नेचुरली उसके जो सिक्रीशंस हैं वो इधर उधर गिरेंगे, इधर उधर गिरेंगे। सो कई बार पेशेंट के पिल्लो पे ऐसा साइन बनेगा, हेलो साइन, ओके, हेलो साइन।